آئیں آپ کی بھرپور تعلیم میں خدا کے خادم کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور خدا کا زندگی بخش کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اسی یسوع کے قادر اور قدرتی نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو۔ آج ہم جس بات کو بائبل مقدس میں سیکھنے والے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نسل کا جو سلسلہ ہے وہ مکاشفہ کی کتاب سے شروع ہے، اور آج اس کا 6واں نام جو ہے وہ بائبل مقدس میں سے ہم سیکھیں گے۔ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے آئے ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب 7 آیت سے پڑھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب 3 باب 7 آیت۔ جلدی سے پڑھیں۔ فلدلفیا کی کلیسیا کو پیغام، فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، جو قدوس اور برحق ہے اور دور کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی نہیں کھولتا۔ وہ یہ فرماتا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ میں ایسا کروں گا، وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، کیونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا۔ اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا، جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، اور پھر وہ کبھی باہر نہ نکلے گا۔ میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس ہے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام مجھ پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ بائبل مقدس میں ایک بڑی خوبصورت بات بائبل بیان کرتی ہے۔ یہ 6 کلیسیا، چھٹی کلیسیا ہے یہ، کیونکہ بائبل مقدس میں 7 کلیسیوں کا ذکر ہے، لیکن یہ ایک واحد ایسی کلیسیا تھی جو خدا کے ساتھ چلتی تھی۔ اور اس کا جو جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں اور اس کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو یہ واحد کلیسیا تھی جو فلدلفیا کی کلیسیا تھی۔ فلدلفیا کے معنی ہیں برادرانہ محبت یا برادرانہ الفت رکھنے والے لوگ۔ یہ بڑی محبت رکھتے تھے، خدا کے ساتھ بھی رکھتے تھے۔ یہ واحد 7 کلیسیوں میں ایک ایسی واحد کلیسیا تھی جو خدا کے ساتھ بڑی وابستہ تھی، خدا کے حکموں پر چلتی تھی، اور لیکن یہ تھی چھوٹی، لیکن خدا کے ساتھ اس کا بڑا تعلق تھا۔ اسی کے تعلق سے جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو پھر بائبل ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ بائبل مقدس میں جو بات لکھی ہے وہ لکھی ہے کہ جو قدوس اور برحق اور دور کی کنجی رکھتا ہے۔ بائبل
पहले देखते हैं यशायाह 54:5 में ये बात बाइबल मुकद्दस में बयान करती है। यशायाह 54 5 से पढ़ेंगे। क्योंकि तेरा खालिक तेरा शौहर है, उसका नाम तो रब्बुल अज़वाज है, वो तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का कद्दूस है, तो वो तमाम रुए ज़मीन का खुदा कहलाएगा। वहाँ यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में बयान करती है तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का क्या है, कद्दूस है। यानी इसका बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह को जब भी हम आगे पढ़ते हैं तो यीशु मसीह को कद्दूस के नाम से यानी पाक के नाम से माना जाता है, और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में बयान करती है कि वो तेरा क्या है, इस्राएल का कद्दूस है, वो तमाम रुए ज़मीन का खुदा कहलाएगा। आगे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आगे जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो ना सिर्फ इंसान बल्कि बाइबल मुकद्दस में बयान करती है, जब यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें इस बात का से बड़े वाज़ेह तौर पर मिलता है यूहन्ना की इंजील कि जो रूहें थी वो भी यीशु मसीह को इसी नाम से पुकारती थी। यूहन्ना की इंजील 17:11 है। मैं आगे को दुनिया में 17 बाब की 11 ये बाइबल मुकद्दस में वहाँ पर ये लिखा है 11 लेकिन और वहाँ पर बाइबल मुकद्दस में जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो बंधुएं हैं वो यीशु मसीह को कहती है कि हम जानती हैं कि तू खुदावंद का कद्दूस है, तू खुदावंद का कद्दूस है। यानी जो बंधुएं हैं वो भी यीशु मसीह को जानती हैं कि वो खुदा का क्या है, कद्दूस है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में यीशु के तल्लुक से हमें यही बात बाइबल बयान करती है। और अब इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है बरहक। बरहक का मतलब होता है सच्चा। यीशु जी ने भी इसके बारे में अपने तल्लुक से बयान किया है कि राह और जिंदगी मैं हूँ। बाइबल मुकद्दस में जब हम इस बात को पढ़ते हैं यूहन्ना 14 बाब की 6 आयत को, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। यीशु ने उससे कहा राह हक और जिंदगी कौन है, मैं हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यीशु मसीह ने भी कहा कि अपने आप को हक कहा है क्योंकि ये सच्चा है, सच्चाई है, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये खुदा का बेटा है। और खुदा का बेटा जो है वो सच्चा है, और जो कुछ उसके बाद वो बात करता है वो भी क्या है, सच्चाई की है। और इस बात को थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, सच्चाई है। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील पहला बाब हाँ जी 14 और कलाम मुजस्सम हुआ हाँ जी, और फजल और सच्चाई से ममूर और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। और कलाम क्या हुआ, मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का है। यहाँ पर भी बाइबल मुकद्दस में ये बयान करती है कलाम मुजस्सम और फजल और सच्चाई से, यानी सच्चाई सच्ची बात ये है, वो सच्चाई है। यीशु मसीह के अलावा किसी ने अपने आप को खुद सच्चाई नहीं कहा जैसा यीशु मसीह की। बाइबल मुकद्दस यही हमें बयान करती है, यदि वो सच्चाई है। अगर इसके लफ्ज़ का
दाऊद की क्या रखता है, पहली आयत को अब लिखा है कि जो कुर्सी पर हक और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। कुंजी लफ्ज़ असल में जो है ये चाबी को कहते हैं। ये लफ्ज़ जो है इसका मकसद अख्तियार है। जिसके पास कुंजी होती है वही घर को खोल सकता है या उस ताले को खोल सकता है, दूसरा नहीं। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें ये बड़ी वजाहत के साथ ये बयान करती है कि वो उसके पास क्या है, कुंजी है। क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस यशायाह की किताब 22 आयत को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी ये बात वाज़ेह होती है। 22 की 22 यशायाह 22 और मैं दाऊद की कुंजी उसके क्या रखूंगा जी, और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। बस वो खोलेगा, बस वो खोलेगा, वो कोई बंद ना करेगा, कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा, और वो बंद करेगा और कोई ना खोलेगा। लिखा है दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। क्योंकि बाइबल में तस्वीर इस बात को जो है लोग जब पढ़ते हैं तो बाइबल में तस्वीर ये बयान करती है कि खुदा का जो घर है, यानी दाऊद का घर जो है वो खुदा के घर कहलाता है। खुदा के घर की कुंजी का इख्तियार उसे दिया जाएगा, क्योंकि वो उसको खोलेगा और कोई उसको बंद नहीं कर सकता, और जो बंद करेगा कोई उसको खोल नहीं सकता। यदि उसके तख्त पर उसके बादशाह होने का इख्तियार भी ये है कि वो बादशाह है और उसके पास इस बात का क्या है, इख्तियार है। क्योंकि कुंजी के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो जो है इख्तियार को ज़ाहिर करती है। मत्ती इंजील को जब हम पढ़ते हैं 28 बाब के 18 आयत को, तो ये बात जो है वाज़ेह हो जाती है। मत्ती इंजील 28 बाब की बात है। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की हाँ, और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार क्या किया गया है, मुझे दिया गया है, इख्तियार क्या किया गया है, मुझे दिया गया है। ये इख्तियार जो है कुंजी एक इख्तियार है। अगर आप किसी जगह पर किसी को नौकर रखते भी हैं मिसाल के तौर पर, तो आप कुंजी देते हैं तो उसको क्या दिया है आपने, उसको इख्तियार दिया है। यहाँ पर भी इसी बात को समझने के लिए कि वो तो मालिक है, क्योंकि ये इख्तियार किसी और ने नहीं बल्कि उसके बाप ने उसे ये क्या दिया है, इख्तियार दिया है। बाइबल मुकद्दस में ये बयान करती है कि उसने आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें आगे बयान करती है। जब हम इसकी अगली आयत को देखते हैं मुकाशवा की किताब को, तो यहाँ पर हमें ये बात मिलती है, लिखा है और मैं तेरे कामों को जानता हूँ। क्या करता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हम यहाँ पर बैठे हुए भी हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, हमारा ज़हन कहाँ है, हमारा सिलसिलाकार कहाँ है, वो हम सब इस बात को क्या करते हैं, इन बातों को हम तो अपने दिमाग में सोचते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है वो इन सब कामों को क्या करता है, जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि खुदावंद क्या करता है, बाइबल मुकद्दस में जब हम इस बात को पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब 17 बाब 10 आयत को, मैं खुदावंद दिलों और दिमाग को जानता मैं खुदावंद दिलों और दिमाग को क्या करता हूँ, और आजमाता हूँ, जानता और क्या करता हूँ। आजमाता मैं खुदावंद खुदा दिलों और दिमाग को क्या करता हूँ, हमारे दिमाग में क्या बात हो रही है, क्या बात चल रही है, क्या हम सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन खुदा कलाम हमें बयान करता है, मैं खुदा तेरे दिल और दिमाग को क्या करता हूँ, जानता और आजमाता हूँ। पता है कि उसके दिल के अंदर क्या चल रहा है। यानी कि हम इंसानों से तो अपने मामला छुपा लेते हैं, लेकिन खुदा की ज़ात से हमारे सारे कोई भी मामला छुपा हुआ नहीं रहता है। इसीलिए वो प्यार करता है, मैं तेरे कामों को क्या करता हूँ, जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैं तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, तो उसे बंद नहीं कर सकता। बाइबल मुकद्दस में एक हमें ऐसा दरवाज़ा जो है हमें मिलता है। यूहन्ना के इंजील को जब हम पढ़ते हैं उसके 10 बाब उसकी 9 आयत को, दरवाज़ा मैं हूँ, इसमें
जाने का राह जो है वो दरवाज़ा है। अगर आप बगैर दरवाजे के अगर किसी घर के घर में घुसेंगे तो आपको क्या कहलाता है? हम बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो चोर और डाकू है, जो कि किसी दूसरे रास्ते से आता है, लेकिन जो दरवाजे से आए उसे कभी किसी ने ये चोर और डाकू नहीं कहा। इसलिए बाइबल मुकद्दस में बयान करती है कि यीशु मसीह ने कहा दरवाज़ा मैं हूँ, इस दरवाजे के रास्ते से गुजरना है, इसमें से गुजरना है। ये वो हमारे लिए राह है जिस रास्ते पर यीशु मसीह चले हैं। जब तक हम उस राह पर नहीं चलेंगे हम कभी भी उस आसमान की बादशाह के वारिस नहीं हो सकते। यही बात बाइबल मुकद्दस में बयान करती है कि दरवाज़ा मैं हूँ। और इसका लूका के इंजील को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये बात और वाज़ेह हो जाती है। 16 हाँ जी 16 बात 16 है। शरीयत और हाँ के लिए शरीयत अंबिया यूहन्ना तक रहे और उस वक्त खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मार कर उसमें दाखिल होता है। यानी आसमान की बादशाही में जाना इतना आसान काम नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमें ज्ञान है कि उस दरवाजे में से गुजरना है जो आसमानी बादशाह का दरवाज़ा है, उसमें से ऐसे गुजर जाएंगे। यहाँ पर लिखा है जोर मार कर, कैसे? जोर से मार जो उसमें गुजरना है। यदि उसमें ये दुनियादारी का जोर नहीं, यदि रूहानी जोर अगर हमारे अंदर है तो हम उस में दाखिल होंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जोर मार कर उसमें दाखिल होता है। लेकिन आसमान और ज़मीन का टल जाना शरीयत के मुद्दा के मिट जाने से आसान है। ये बात ये सच है कि जब तक हमारी ज़िंदगी के अंदर ये सिलसिला कार जो ना होगा, रूहानी जोश नहीं होगा, रूहानी मामला नहीं होगा, हम उस आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। यही बात वो ध्यान रखता है कि इसकी किताब में बादशाह की और उस पर लिखा है रखता है कि बंद नहीं कर सकता। तो तुम्हें थोड़ा सा जोर है तो तुम मेरे कलाम पर अमल किया और मेरे नाम से इनकार नहीं किया। तुम्हें थोड़ा सा क्या है? जोर है और तुमने मेरे कलाम पर क्या किया है? अमल किया है। क्या अगर हम सिर्फ कलाम सुन ही लेंगे और अमल ना करें तो क्या आसमान की बादशाह में दाखिल हो जाएंगे? बाइबल के अंदर में लिखा है कि कुछ बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक है, अच्छा करता है, शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। यानी वो भी इस बात पर ईमान रखते हैं खुदा पर, लेकिन फर्क क्या है? इंसान भी ईमान रखता है, लिखा है शयातीन भी ईमान रखता है। और अगर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उस बात पर ईमान रखता है खुदा एक खैर अच्छा करता है, शयातीन भी ईमान रखते हैं। लेकिन फर्क क्या है? वो शयातीन ईमान रखते हैं लेकिन अमल नहीं करते। वो क्या नहीं करते? अमल नहीं करते। शयातीन खुदा पर ईमान रखते हैं क्योंकि वो जानता है कि उसका खालिक भी खुदा ही है, क्योंकि उसका नाम पहले लूसीफर था और बाद में जब उसके कामों के सबब से उसने खुदा के हुक्म को रद्द किया और अपने अंदर गुरूर और तकब्बर उसके अंदर छा गया, तो उसकी वजह से आसमान से उसको फेंक दिया गया। इसलिए वो जानता है कि उसका मालिक कौन है, उसका खालिक कौन है, खुदा है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो भी ईमान रखता है कि खुदा एक है। शैतान ईमान किस पर रखता है कि खुदा कितने हैं? एक खुदा है। इस बात पर ईमान शैतान का है कि खुदा एक है और यही बात लिखा है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि शैतान अमल नहीं करता। शैतान क्या नहीं करता? क्या नहीं करता? और अगर अमल हम भी ना करें फिर हमने उसमें क्या फर्क है? तो है फर्क नहीं भाई। वो भी ईमान रखता है, अमल नहीं करता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम खुदा को मानते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। उनकी जिंदगियों में जरा भी अमल नहीं है। सारा काम जो है उनकी जिंदगियों में उलट है, वो खुदा की मर्जी के खिलाफ चलते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें बयान करती है कि अगर हम अमल ना करें तो फिर शैतान जैसा हमारा ईमान है, जैसा ईमान शैतान का है वैसा ईमान हमारा है, क्योंकि अमली तौर पर हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। इसीलिए ये कलीसिया
बाइबल बारे में खुदा तारीफ करता है कि मैं तेरा थोड़ा तूने अमल मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। क्योंकि उस वक्त भी ज़बरदस्ती लोग ऐसा करते थे कि लोग अपनी तालीम पर चलने के लिए उनको मजबूर करते थे, लेकिन क्या तूने मेरा इनकार नहीं किया, खुदा का इनकार नहीं किया। अगर हम उसका इनकार करेंगे, लिखा है कि बाइबल मुकद्दस में कि वो खुदा भी अपने फरिश्तों और खुदा के सामने अपने लोगों का इकरार करेगा कि ये इन्होंने मेरा क्या किया है, ज़मीन पर इकरार किया है, वो भी ऊपर इकरार करेगा। लेकिन अगर आपने ज़मीन पर उसका इनकार कर दिया तो फिर आसमान पर भी उसका क्या किया जाएगा, इनकार कर दिया जाएगा। यही बयान करता है कि तेरे अंदर ये एक खूबी है कि तूने उससे इनकार नहीं किया। मैं शैतान की उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा। शैतान की जमात कौन सी हो सकती है? शैतान की वो जमात है जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करती, खुदा के कलाम में आगे उसमें मिलावट करती है, खुदा के कलाम को रद्द कर देती है, खुदा के कलाम में रद्द बदल करती है। वो कौन सी जमात है? बाइबल बयान करती है वो शैतान की जमात है, वो खुदा की जमात नहीं हो सकती। जो खुदा के कलाम में कमी पेशी करता है वो क्या उसको आप खुदा का बंदा कहेंगे? क्यों जी भाई, वो खुदा का बंदा है जो खुदा के कलाम में रद्द बदल करता है। इसलिए कलाम मुकद्दस हमें बयान करता है कि तूने क्या किया है, जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, जो अपने आप को क्या कहते हैं, यहूदी कहते हैं पर है नहीं। आज भी बहुत सारे इसी तरह से ही बहुत सारे मसीह हैं जो अपने आप को मसीह को कहते हैं, लेकिन वो असल में मसीह है नहीं। जिस तरह यहूदियों का दौर था, इसी तरह इस दौर में भी नामी मसीह हैं, उनका कोई तल्लुक मसीह के साथ नहीं है, सिर्फ नामी ग्रामी मसीह कहलाता है। इसलिए लिखा है वो अपने को यहूदी कहते हैं और है नहीं, बल्कि झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भी? सब बोलेंगे क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं कि हम यहूदी हैं, क्योंकि यहूदी वो है जो पहले शरीयत पर अमल करे, लेकिन अगर शरीयत पर अमल नहीं करता तो वो यहूदी नहीं हो सकता। मसीह वो है जो यीशु मसीह की उस अंजील पर जो है, जो अब तक पहुंची है, उस पर अमल करता है तो मसीह ही है। अगर वो अमल नहीं करता तो वो मसीह नहीं है। तो वो बाइबल जिस तरह यहूदी झूठ बोलते हैं, इसी तरह वो मसीह भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो अमल उनकी जिंदगी में अमल नहीं है। हाँ जी। और इसके बाद अगर लिखा देख मैं ऐसा करूँगा कि जो आज हम तेरे पाँव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। ये कलीसिया की तारीफ है कि फतीफिया की कलीसिया की वो तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे तुझसे क्या है, मोहब्बत है कि तू कलाम पर अमल करता है और मेरे नाम से घबराता नहीं है, छुपाता नहीं, ना इनकार करता है। इसलिए लिखा है कि मेरी मुझे तुझसे क्या है, मोहब्बत है। और क्योंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया, इसलिए भी आजमाइश के वक्त वो तेरी हिफाजत करूँगा। तूने मेरे कलाम पर क्या किया है, अमल किया है। जब तक हम अमल नहीं करते, यहूद का खत जो 2 बाब 14 आयत में लिखा है कि जो मैंने भी आपको बताया कि अमल के बगैर अगर हम अमल नहीं करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर कोई बहन या भाई जो है भूखी हो या नंगी हो, उसको रोटी की जरूरत हो और उसको ना दी जाए और ये कहा जाए कि जा गरम और शेर हो, क्या उसका शेर होने का मतलब पेट का भर जाना है और गर्म कपड़े से होता है ना, अगर उसे कपड़े दें और ना उसे खाना दें और ये कहें गरम और शेर हो, तो क्या ये अमल है? ये अमल नहीं है। ये अमल बाइबल मुकद्दस जो है वो नहीं है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हम इस बात को देखते हैं कि उसको जो अमल करते हैं उनको क्या आगे चलकर मिलेगा, ठीक है, कि उसका फिर तेरी इबादत करेगा, क्योंकि ज़मीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया को आने वाली है। लिखा है कि उस वक्त तेरी हिफाजत करूँगा जो ज़मीन के रहने वालों पर आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाली है। क्योंकि एक दौर आने वाला है जो बहुत खतरनाक दौर है और उस दौर के अंदर जो है लोग क्या कहेंगे हम पर पढ़ते हैं। की किताब की 6 बाब
कौन सी ऐसी मुसीबत है जिसके बारे में बाइबल बयान करती है। 6 बात की हम 12 ऐसे पढ़ेंगे। और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कमल की मानद काला और सारा जहां खून सा हो गया और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त से कच्चे फल गिर पड़ते हैं, और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मखदूम निपटने से सिरक जाता है, और हर एक पहाड़ टापू अपनी जगह से टल गया और जमीन के बादशाह और अमीर फौजी सरदार और मालदार जोरावर और तमाम गुलाम आजाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छुपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो, हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा है और बड़ा की गजब से छुपा लो। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि ये एक ऐसा दौर आएगा कि लोग और तलाश करेंगे, पहाड़ों को और चट्टानों को क्या कहेंगे, हमारे ऊपर क्या करो, गिर पड़ो। क्या मकसद है इसका? गिर पड़ने का कि वो बंदा क्या चाहता है, मरना चाहता है। आज तू मरना नहीं चाहता, लेकिन उस वक्त वो क्या करेगा, मरना चाहेगा। और लेकिन बाइबल बयान करती है कि मैं उस वक्त बुरे वक्त से आने से पहले मैं उन लोगों की क्या करूँगा, आजमाइश करूँगा, उनको बचाऊँगा, क्योंकि उनके कदम का रूह अजीम आम पहुँचा, अब कौन ठहर सकता है। आए बाइबल मुकद्दस में यही बात लिखी है कि मैं उस दिन आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूँगा, मैं उस वक्त क्या करूँगा, तेरी हिफाजत करूँगा। क्योंकि जब ये दौर आएगा तो इस दौर से पहले बाइबल मुकद्दस में मुकाशवाही की किताब में बयान करती है, इस दौर को दौरे मुसीबत कहा गया है। वहाँ इस दौर को क्या कहा गया है, दौरे मुसीबत का दौर होगा। इससे बड़ी मुसीबत क्या है कि इंसान खुद मरने के लिए पहाड़ों को कहता है कि हम पर क्या करो, गिर पड़ो। वो मरना चाहते हैं लेकिन मौत नहीं आएगी। आज वो मरना नहीं चाहता, लेकिन उस वक्त वो मरना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले जब ये दौर आएगा, बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि कलीसिया आसमान पर उठा दी जाएगी, कलीसिया आसमान पर उठा दी जाएगी। कलीसिया ये दौर नहीं देखेगी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं उस वक्त मुसीबत में मेरी क्या करूँगा, हिफाजत करूँगा। खुदा उनकी हिफाजत करेगा। खुदा उन्हें जो एक दौर आएगा, उस दौर से पहले वो आसमान पर उठा कर उनको ले जाएगा, ताकि ये दौर उसके जो मुकद्दस लोग हैं जिन्होंने उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार कर रखा है, वो मौत की तलाश नहीं करेंगे, बल्कि बाइबल मुकद्दस में ये बयान करती है कि वो आसमान पर क्या कर लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। यदि ये दुनिया के अंदर तो हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, लेकिन वो अगली मुसीबतों से बच जाएंगे, महफूज रहेंगे। ठीक है कि मैं उनकी क्या करूँगा, हिफाजत करूँगा जो ज़मीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूँ, और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, क्योंकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। ताज जो है ये कौन पहनते हैं, बादशाह पहनते हैं। ये ताज बादशाह पहनते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम मुकद्दस कौम और खुदा के काहिन हो, और खुदा के काहिन मुकद्दस कौम में मसीह कौम को इस बात फख्र होना चाहिए कि बाइबल मुकद्दस ने मसीह कौम को मुकद्दस कौम कहा है, और शाही काहिनों का फिरका कहा है। शाही काहिन बादशाह काहिन होंगे, ये बादशाह भी होंगे और काहिन भी होंगे। ये बाइबल मुकद्दस ने मसीहत को, मसीह जो मसीह पर ईमान रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद है, जबकि शायद मैं समझता हूँ कि दूसरे के पास ये उम्मीद नहीं है। लेकिन मसीहियों के लिए यीशु मसीह ने उन्हें सरदार काहिन और शाही काहिन बना दिया है, मुकद्दस कौम बना दिया है। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो क्या पहनेंगे, ताज। लेकिन पौलुस रसूल जो है इस ताज को पहनना क्या इतना आसान काम है? क्यों? इस ताज को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बाइबल मुकद्दस में हमें जो है वो पौलुस रसूल ने बड़ी वजाहत के साथ इस बात को ग्रंथियों के खत में, पहला ग्रंथियों 9:24-25 आए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले
करती हूँ 9 की 24 और 25 तक। क्या आप नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी ही हैं, हाँ जी, मगर इनाम एक ही लेकर जाता है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो दौड़ते हैं, दौड़ते तो सभी ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। यानी जब खेलों के मैदान में लोग उतरते हैं, दौड़ का सिलसिला होता है, तो दौड़ते कितने हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जो दौड़ रहे होते हैं, लेकिन क्या वो सब दौड़ने वाले इनाम ले जाते हैं? इनाम वही एक ले जाता है जो उनमें से ज़्यादा तेज आगे दौड़ता है और फिर उस मुकाम को जो उन्होंने मुकर्रर किया होता है उस मुकाम तक पहुंचता है, तो वो जीत जाता है। इनाम एक ही है। हाँ जी, आगे तुम भी ऐसे ही दौड़ते तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। ताकि क्या करो जी? क्या करो? सब बोलो क्या करो? जीतने के लिए दौड़ना है तो फिर तो ठीक है, अगर हारने के लिए दौड़े तो फिर अगर हम जैसे कबूतर के लिए दौड़ते हैं, दौड़ा ही ना जाए तो वो जीत जाएगा। आप अंदर ख्वाहिश है कि मैंने इनसे ये कप जो है ये मैंने जीतना है, तो क्या करना पड़ेगा? तेज दौड़ना पड़ेगा या आहिस्ता आहिस्ता? तेज दौड़ना पड़ेगा। नहीं कह रहा कि जीतो। हाँ जी, आगे क्या करो? जीतो। हाँ जी, हाँ, और हर एक पहलवान सब तरह का परहेज करता है। पहलवान की जब कुश्ती मुकर्रर हो जाती है कि उसने फलां आदमी के साथ उसकी कुश्ती फलां तारीख को है, तो वो उससे पहले अपने आप को, अपने बदन को पाक साफ रखता है, अपनी ताकत को महफूज रखता है, ताकि कहीं जाकर जब खेलने के लिए जाऊं तो ऐसा ना हो जाए कि मैं वहाँ पर हार जाऊं, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी बात बयान की जा रही है कि हर पहलवान को हमें एक मिसाल देता है। पौलुस के लिखा है हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है, सब तरह का क्या करता है? परहेज करता है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे वो अपने आप को बचा कर रखता है। लिखा है परहेज करता है वो लोग तो मुरझाने वाले सेहरा पाने के लिए। सेहरा जो होता है दो किस्म का सेहरा होता है, एक तारों वाला होता है, एक फूलों वाला होता है। और तारों वाला जो है वो तो काफी देर तक चलता है। शायद मेरा सेहरा जो सेहरा वो भी अभी पेटी में पड़ा हुआ है, मैंने देखा, लेकिन वो जो तारों वाला है, लेकिन साथ उसके जो फूलों वाला है उसका नाम निशान भी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें इसी की तरफ एक पहलवान की तरफ वो एग्जाम्पल देता है कि जिस तरह वो पहलवान अपने आप को हर तरह के परहेज से बचाता है, हर तरह के गुनाह से बचाता है, ताकि मैं कहीं कमज़ोर ना पाया जाऊँ, वो परहेज करता है। और यही बात बाइबल मुकद्दस बयान करती है। क्यों करता है? वो मुरझाने वाले सेहरा पाने के लिए ये करते हैं। वो उस सेहरे के लिए करते हैं जो क्या है? मुरझाने वाला सेहरा है। ये सेहरा जो फूलों का सेहरा होता है, ये दूसरे दिन या तीसरे दिन कचरे में फेंक दिया जाता है। लेकिन हमें जो सेहरा मिलने वाला है, हमें जो ताज मिलने वाला वो ऐसा नहीं है, वो हमेशा कायम रहने वाला है। लेकिन इस सेहरे के लिए कितना परहेज किया जाता है। यानी अगर हम इन चीज़ों के लिए परहेज नहीं करेंगे तो फिर हम कभी भी जीत नहीं सकते, बहुत जीत नहीं सकते। या जो पहलवान का उसकी कुश्ती होती है वो नहीं जीत सकता, क्योंकि उसने अपने आप में जो है बदन को उन चीज़ों से परहेज नहीं किया। इसलिए लिखा है सेहरा पाने के लिए करता है, मगर उसके सेहरे के लिए करता है जो नहीं मुरझा जाता। मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता, और उस सेहरे के लिए इतनी चीज़ों से अपने आप को परहेज करके बचाता है ताकि वो कहीं हम हार ना जाए। लेकिन वो कहता है कि हमारा जो सेहरा वो कभी मुरझाने वाला नहीं है। उसका उस सेहरे के लिए इतनी अपने बदन की पाक की रखता है, अपने आप को गुनाह से बचाता है, महफूज रखता है, ताकि उसके पीछे सिर्फ वो सेहरा उसका मकसद होता है कि मैं उस सेहरे को क्या करूँ? हासिल करूँ। और यही बात बाइबल मुकद्दस में बयान करती है कि उसका करता है। और उस सेहरे के लिए जो नहीं मर जाता,
हम बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, लेकिन पेट करना नहीं, मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, लेकिन उसकी मारते नहीं तो हवा को मारते हैं। उसने कहा इसी मकाम को, इस बात को छीनने के लिए मैं अपने बदन को तस्वीर देता हूँ। अगर मेरे बदन के अंदर या मेरे जहन के अंदर कभी बुरा ख्याल भी आता है तो अपने बदन को मारता हूँ, ताकि मेरे बदन में ये ख्याल आया क्यों है, ये जो बुरा ख्याल है ये क्यों ये बुरा ख्याल मेरे जहन में आया है। कहता है मैं अपने आप को क्या करता हूँ, मारता हूँ। हम करते हैं सब कि हम अपने बदन को मारे। वो कहता है मैं इस फेरे के लिए जो कभी नहीं हो जाता उसके लिए करता हूँ। लेकिन उसकी मानद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूदता और उसे काबू में रखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपने बदन को मारता और क्या करता हूँ, अपने बदन को मारता हूँ। अपने बदन को क्या करता हूँ भाई जी, अपने बदन को मारता कूदता हूँ, अपने बदन को मारता हूँ, क्योंकि ये गुनाह जो हमने करना है इस बदन में रहकर करना है। हमने अगर कोई भी बुरा काम करना है या नशा करना है तो नशा किस सूरत करना है भाई। अगर मुंह से गुटखा खाना है, मुंह से सारी चीज़ें खानी है, चिप्स पीनी है, शराब पीनी है, वो चीज़ें करनी है, मुंह से ये सारा सिलसिला कार अपने का। इसलिए मैं अपने बदन को मारता हूँ ताकि मेरे अंदर कोई भी ऐसी बात ना है। मारता कूदता उसे काबू में रखता हूँ और ऐसा ना हो कि औरों की मुनादी करके आप ना दूसरों को तक मुनादी करूँ और वो आसमान की बादशाह में चले गए, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो आसमान की बादशाह में चले गए और जिन्होंने मुनादी की है वो आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं ना हो। वो इसी बात को बाइबल के तस्वीर में क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा सच है। और इसके बाद बाइबल के तस्वीर में लिखा है सतून। आगे जब हम इस बात को पढ़ते हैं की किताब में, और जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा की मक़दस में एक सतून बनाऊंगा। जो गालिब आए मैं उन्हें क्या करूंगा, अपने खुदा के मक़दस में, खुदा के घर का एक सतून है, खुदा के तौर पर ये एक जो सतून है, इस सतून पर क्या है, ये बेटा क्या है, कायम है। और खुदा के लोग भी ऐसे हैं जो खुदा के साथ चलते हैं, वो उस चर्च का पिलर होते हैं जिनके गिरने से सारी कलीसिया परेशान हो जाती है। तो इसका मकसद है कि मैं उसे उस घर का सतून बनाऊंगा, उसका घर का सतून यानी पिलर बनाऊंगा। अगर हम चाहते हैं और पिलर, ये पिलर को बाइबल के अंदर में आगे लिखा है कि सतून बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। क्या ये पिलर निकाल दिया जाए तो बिल्डिंग पर भरोसा किया जाता है, किया जा सकता है। ये दोनों पिलर हटा दिए जाए तो क्या हम इस बिल्डिंग पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं ना। तो मकसद है कि मुझे कहा मैं तुम्हें एक ऐसा मकाम बख्शूंगा जो जिस पर जो पूरी कलीसिया का दारोमदार होगा। इसलिए उसने कहा कि फिर नाम निकाला जाएगा, निकालेगा, और मैं अपने खुदा का नाम, अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरेगा, अपना नया नाम उसको दूंगा। बाइबल के तस्वीर जब हम सवाल को पढ़ते हैं तो रवायत है, रवायत की जब हम पढ़ते हैं तो रवायतें हैं कि वहाँ फिलिपिया के दौर के लोग बुतप्रस्त थे और वो जो पुजारी उस मंदिर की सारी जिंदगी खिदमत करता था, और खिदमत करने के बाद अगर वो मर जाता था और उसका नाम और उसके बाप का नाम उस सतून पर, पिलर पर लिखा जाता था। इसलिए ये यहाँ पर हमें यही तस्वीर दी गई है। बाइबल समय जो है ध्यान करती है, इस पर आसमान से उतरने वाला है, अपना नया नाम लिखूंगा। बाइबल से जो है हमें ध्यान करती है कि अब्रानियों के खत को हम करते हैं कि जिसके आगे लिखा और जिसके काम हो कि वो सुने के रूह कलीसियों से क्या करता है, क्या फरमाता है, जिसके काम हो। हम किसी बात को बाइबल के तस्वीर अब्रानियों के खत में जब हम इस बात को पढ़ते हैं, अब्रानियों का खत 3 बार उसकी 7 आयत है।
सुनो तो अपने दिलों को क्या ना करो, क्या ना करो, क्या ना करो भाई सब लोग, सख्त ना करो। सख्त करने से क्या मुराद है? अगर हम सिर्फ कलाम सुनते ही हैं और उस पर अमल नहीं करते तो हमने अपने दिलों को क्या कर लिया है? सख्त कर लिया है। क्योंकि सख्त कर लिया है क्योंकि हम खुदा का कलाम तो सुनते हैं पर उस पर अमल जरा भी नहीं है। इसका मकसद यही है कि तुम जो है उसके कलाम को सुनते हो और बस जिस तरह रूह कुद्दुस फरमाता है कि अगर तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और जिस तरह मूसा लाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया, बाइबल के दस बयान करते हैं कि जिस तरह तुमने क्या किया आजमाइश के वक्त जंगल में किया था। यानी ये एक सिलसिला था। ये अगर हम काम तो रखते हैं लेकिन अगर हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते हैं, सिर्फ सुनकर चले जाते हैं, तो उस कलाम का असर हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं। इसका मतलब है कि हमारे कान तो थे और सुना भी मगर उन पर अमल नहीं किया। तो ये क्या है? ना सुनने के बराबर है। किसके कान हो वो सुने। इसका मतलब कान तो सभी के हैं। कौन है जो बगैर कान के पैदा हुआ है? ऐसा नहीं है। और खुदा ने सब काम किए हैं ताकि खुदा की बात को सुने और उस पर क्या करें? अमल करें। यही बात बाइबल के अंदर है। और बाइबल के अंदर क्या है कि ये जो फिलिपिया का ज़माना था, फिलिपिया का ज़माना बाइबल के मुताबिक 1900 तक ये चला। इसका ज़माना 1900 तक था। ये फिलिपिया का दौर था 1900 तक, 1900 ईस्वी तक ये इसका दौर चला। तो इसलिए बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि ये फिलिपिया का जो दौर था, अगर एक आयत पर बहुत उसी के साथ उसी बयान किया जाए तो बहुत टाइम चाहिए होता है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक बात पर ध्यान करके कोशिश की और मैंने की है। खुदा इस कलाम पर करने का बड़ा ज़्यादा मामला है। खुदा आपका मदद करें।